बहुत सुंदर किताब है मेरा दागिस्तान। दागिस्तान अभी तो एक देश बन चुका है, पर उस समय एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। तो वो कहते हैं कि मैं दुनिया को देखना पसंद करता हूँ, पर अपने गांव के घर की खिड़की से। I've not been trained in a university or a college in photojournalism or in journalism. So, in fact, there were very few places to study these courses. So, whatever training, if you can call it that, we had were basically mistakes. so they were not like exams or courses or topics or skill development, nothing. No, no one to tell you what to do or how to do it. You can only learn by mistakes, and if you are lucky, there would be someone to correct them. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनवील भारत में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने कैमरे से ऐसे पल जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को संवारा है, सहेजा है और अपने फोटोज़ के जरिए उन कहानियों को हम तक लाया है। आज हम बात करने वाले हैं फोटो जर्नलिस्ट हिमांशु व्यास जी से, जो कि एक रामनाथ गोयनका अवार्ड विनर भी है। Hello Himanshu ji, thank you so much for coming here on our podcast. Sir, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि I have been the part of your workshop और वो बहुत अच्छा था। एंड आपने स्टार्टिंग में ही अपने लाइफ की स्टोरी सुनाई, लाइक आपकी जर्नी कैसी रही। तो दो कैरेक्टर मुझे बहुत आपके लाइफ से सिमिलर लगते हैं, लाइक 3 इडियट का वो फरहान एंड सम कैरेक्टर ऑफ रणचोर। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में। Thank you Sonali for having me here, and it's really a pleasure to be talking about things that you have lived and which has been your profession. I'll try to say something about the beginnings. I've not been trained in a university or a college in photojournalism or in journalism. So, in fact, there were very few places to study these courses. So, whatever training, if you can call it that, we had were basically mistakes. So, they were not like exams or courses or topics or skill development, nothing. No, no one to tell you what to do or how to do it. You can only learn by mistakes, and if you are lucky, there would be someone to correct them. So, my beginning was like I had an interest in looking at the world through viewfinder. That's the very primary thing that a photojournalist has to learn, or someone who has any inclination in expressing through camera. They should have the desire to look at the world through the viewfinder. अब एक बहुत सुंदर किताब है मेरा दागिस्तान, रसूल हमज़ातो का है। तो वो किताब में अपने गांव के बारे में लिखते हैं। वो उनके गांव की ऑटोबायोग्राफी जैसी समझ लीजिए, जो रसूल साहब के थ्रू कही गई है। तो दागिस्तान अभी तो एक देश बन चुका है, पर उस समय एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। तो वो कहते हैं कि मैं दुनिया को देखना पसंद करता हूँ, पर अपने गांव के घर की खिड़की से। तो ये जो खिड़की से देखने का मामला है, तो व्यू फाइंडर में झांकते ही आपको ऐसा लगता है कि यू एज इफ़ यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू योर ओन विंडो। तो दैट डिज़ायर वॉज ऑलवेज देयर सिंस चाइल्डहुड। वर्ल्ड लुक्स डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू योर 2 eyes, बट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू लुक एट इट थ्रू द व्यू फाइंडर। So that habit I always had. So while preparing for my, since my father is a doctor, so
I was supposed to be, I mean, every mohalla, whole of the mohalla has the desire that doctor ka beta doctor hoga, engineer ka Yes, beta sir. engineer hoga, and all the relatives and everyone. So I appeared for pre-medical test for so many years that if I tell the number of years, it would sound ridiculous. But I went through the ordeal or the desire, and but all that while I used to keep my camera with me. Okay. So it would be there when I go to tuition, it would be there when I return home, if I go to purchase books for my pre-medical exam. Every time the camera was there. And I would click some picture on another, I would stop my scooter or Luna and take some pictures in the morning light. So one fine morning I had this idea that my picture should appear in newspaper. Okay. So childhood influences play a lot of Yeah, part in yes. that. So I had always grown up looking at good pictures in nice magazines like Soviet Rus, Span, German News, and India Today, Asian Age, the newspaper. The black and white picture printed on the newsprint, it has some, you can't tell what it is, but that's a very deep impression on one's mind. Yes. So I went to the local newspaper and I showed the editor that these are the pictures I have taken. That was a small album, 4 by 6 size, Okay. some pictures. So he was an old man and he was a retired officer. So he looked at the picture, he said nothing, took out 2 or 3 pictures and said, okay, go. So I thought, okay, he has taken some picture. I was not aware that what's going to happen with the pictures or so. So it so happened that on the morning of my BSc second year examination, Okay. while I was going for examination, suddenly I saw the newspaper and there was a huge almost half a page of, and I saw it looks familiar. Oh my God, it's my picture. There's my name. Oh, and I thought that I should shout and tell everyone. I'm having a picture in newspaper while you are in college, and suddenly I realized that, oh my God, it's also a blunder. No one knows that I've been taking pictures all this while. Yes. So I thought that I should hide the newspaper Okay. so that no one gets to know. But can you hide a newspaper? No. And you can't hide a news, you can't. So all that while I was struggling to decipher that what should I do, how, I mean, now the new situation that my picture is in newspaper, my name is there and no one knows that I've been taking pictures instead of preparing for my medical exams. So I was just figuring it out, and suddenly one of our aunt knocked at the door. Oh, he wanted a photo. And she came and congratulations and all that. And but my parents are like kind of happy and also wondering, camera, where is the camera? Is he carrying the camera also? When did he take this picture? So so someone gave me 5 rupees and someone gave me 11 rupees and all. And it was like a festive Shagun. occasion. Shagun jaisa. Yeah. So those were the times. And slowly my pictures started appearing in while I was doing my graduation. And that's how it all, even before joining the newspaper and becoming a professional photojournalist, I had this tendency of looking at the world through the viewfinder, at the people, at streets, at children, at dunya. Okay. So आपके लिए व्यू फाइंडर इज ऑल द राइट थिंग फॉर यू. सो सर आप बताना चाहेंगे कि आपने रैंडमली इस फील्ड में एंट्री ले ली, लाइक न्यूज़पेपर में आपकी फ़ोटोज़ आ गई, तो इसके बाद आपने क्या सोचा? न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आने के बाद आपने वहाँ से अपनी करियर की शुरुआत सोची या फिर आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में कुछ और करना है? एंड हाउ डिड यू गेट द कैमरा? Yeah, that's very interesting. First, the camera part. Camera was always there in our household. I mean, Okay. it was, we're not very in a very rich people, but we had very basic camera, which arrived when I was say in 8th standard or so. So I, even at that time, I had a habit of not taking my own pictures or घर वालों का picture. It was like आप थोड़ा sunlight में आ जाओ. And I had that sense of light. Okay. Compositions were not fine. Now I look at those pictures, they are not well composed, but the sense of light and expression is there. So that was when I was say about 12 or 13. So the camera was there, and it so happened that after my first picture got published in the
newspaper. Before that, I had already got that SLR camera. My father got me. So he's also he's a doctor, but he's a wonderful artist. Okay. Also, he makes wonderful collage with very mundane things. And my mother, she's also does wonderful embroidery, and so that atmosphere was always there. So he had already got me a decent camera. It was a film camera, Yashica FX3 2000. So, but it was a costly hobby because the film roll used to cost about say 70 rupees or 120 rupees. If you develop it, again 10 rupees more. If you print them, every print would cost you 350 3 rupees 50 paisa. So developing and printing a roll would sum up to around 300 rupees, which was a huge amount for a berozgar person. So I had the camera, and he always encouraged me. Even after it became open that I'm taking pictures and not getting selected for pre-medical, still I got a new lens after that. Okay. I got money for occasional film role. So that was about that. And what was the second part of the question? Second part was that how you entered this field. Fine. Once it started getting published, the pictures in the local Hindi newspaper, so I was not trying to take it as a field that I have to make it a career or अच्छा photo ले रहे हैं, occasionally छप रहा है. But slowly I was around 27, and so those were like kind of relaxed times also. It was dark ages for a youth because either you have to be a doctor or an engineer, or perhaps a lawyer or things like that, or an MBA. So a youth had only say 3 or 4 options, and I was not fit for any of them. I did not have any inclination for them. So I thought, what should I do? Because my academic grades were falling, but my pictures were getting published in newspaper regularly. I was writing for a local NGO's magazine also. So a parallel path was like very hazy, very subtle, ephemeral सी path एक बन रहा था. So when the pressure became obvious in the mohalla and household कि ये बेरोजगार is spending, तो मुझे लगा कि I should try in the India Today's office. Okay. Suddenly from Jodhpur to India Today, Today, Connaught Place, Delhi. Their office was at Connaught Place at that time. So I went there. My father was incidentally going there for some work, so I accompanied him. And once he was free also on holidays, so we went to the magazine's office and met a very senior photojournalist, Mr. Pramod Pushkarna ji there. He said, he looked at my pictures, my work, and my so he said, okay, it's good, but we don't have a post for a photojournalist. So, but you are also since writing, why don't you give an interview for a copy editor? I was not aware what a copy editor is or what a sub-editor is, so I only knew that how to take pictures. So he referred me to his colleague, Mr. Noel Ray. He was perhaps the chief sub-editor or perhaps very senior person. So he welcomed me and he took my test and all that. And he said, okay, we'll inform you by tomorrow. So tomorrow his call came at the guest house where we were staying, and he said, okay, you have been selected. And that was like, oh my God, India the dream Today. magazine, India Today. So I'm just going to start my work with India Today. My God, all the pictures, and suddenly it was like next issue will have a photo feature by me in India Today. But that was not to happen. Okay. So we went there, and while they were finalizing the letter and all that, this would be your salary for 6 months, like you'll be trained and all that. So between that conversation, I asked him, will I be able to take pictures? Oh, yeah. And he said, no. We have a complete dedicated staff of photojournalists. Okay. So you'll have to just edit the copies. And I asked, occasionally will I be able to accompany a reporter? Or no, we have, you will just be editing. So I won't be able to take pictures. So I said, no, I don't want this. And at that moment, it was a very risky decision, very unpredictable thing.
But photojournalism is a field where you should be ready for unpredictability. It becomes like a life skill, or it's a very intuitive profession. It's a very you anticipate a few things and you have a kind of fragrance. It's like so. Henry Cartier-Bresson, he's called the grand old man of photojournalism. He always used to say that no, I do not look for pictures. I just Smell it. yeah, I can just sense that something. Okay, Yeah, sense it. so that's a very typical thing about photojournalism, that it's something is there. Some- So I said no, I don't want to join. So he was surprised. He communicated back to Pramod Pushkarna ji that here's a boy, he is getting a job and he is saying no because he won't be able to take pictures. So Pramod ji then called me back again and said, okay, so you go to Hindustan Times office. They need a photojournalist for Jaipur. Okay. They're launching their edition. So I went there, and then it kind of, the professional journey started. They were kind of waiting for me to come. That there's someone who is coming who has just refused a job at India Today because he wants to take pictures. So they all of them in that office wanted to see who's that person who has just refused a job. You are so dedicated for that हाँ, profession. yeah. सो आपने जैसा कि हमें बताया कि आपने रैंडमली फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दिया, आपको कैमरा मिल गया था, बट आप इसी के थ्रू आप इस फील्ड में एंटर हुए. Right. बट हिमांशु, आपने बताया कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं था उस टाइम में, स्कूल भी नहीं थे, इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे जो हमें प्रॉपर वे में फ़ोटो जर्नलिज्म बताए. तो आपको कोई परेशानियाँ हुई? आपने कहाँ से सीखा इन चीज़ों को? बहुत टेक्निक्स है कैमरा में, बहुत सारी स्किल्स की हाँ. ज़रूरत पड़ती है. हाँ, तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज किया है? हाँ, देखो सोनाली, ये काम की चीज़ है सीखने के लिए, या अभी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि कोई सुविधा का नहीं होना वो कैसे आपको सिखाता है. सीखने की चीज़ें होने से ही आदमी सीख नहीं पाता. सही बात. कुछ चीज़ों की एब्सेंस से आप बेहतर सीख पाते हैं. अच्छा कॉलेज नहीं होना, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होना, अच्छे जानकार लोगों की कंपनी नहीं होना, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं होना, कोर्सेज नहीं होना, और अगर कहीं है तो उनकी नॉलेज भी नहीं होना, है ना. दोज वर द टाइम्स. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन राइट नाउ दैट ऐसा समय भी था कि आपको एक जोधपुर जैसे शहर में पता भी नहीं चल सकता कि कहाँ पढ़ाया जाता है कुछ. कोई वेबसाइट नहीं है, कोई अखबार नहीं है जिसके अंदर किसी, देयर इज एक्चुअली नो वे. एंड देयर आर few people who are coming from institutions. आप अगर लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस भी जाओगे तो 1996 में, तो वहाँ शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ उस के आया टाइम हो. फोटो जर्नलिस्ट वर्ड जैसा कुछ था प्रोफेशन? नहीं था. अखबार के फोटोग्राफर. Okay. ये अखबार में फ़ोटो खींचता है ना. Okay. फोटो जर्नलिस्ट, दैट वर्ड वाज नॉट देयर इन Okay. जयपुर. या न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ लेता है ना. इट वाज लाइक दैट. तो अगर आप उस ऑफिस में भी जाओगे तो देयर वुड बी नो वन हु कैन गाइड यू टू कि भाई तुम भोपाल चले जाओ, वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी में है, दिल्ली में नो वे. ओकेजनली यू कम अक्रॉस कि देयर इज़ अ कोर्स इन, ये होता है ना. उसका लास्ट डेट क्या है, उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा. इधर यू गो टू भोपाल टू गेट द फॉर्म, है ना. यू कैन रिकग्नाइज द अमाउंट ऑफ हर्डल्स, बट मीन वाइल इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू, पहला, गो ऑन डूइंग. आप जो कर रहे हो, आप किसी कोर्स के भरोसे अपनी चीज़ तो करना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल. है ना. आप फोटोग्राफी तो नहीं छोड़ेंगे. आपके सामने सब्जेक्ट आ रहा है, आप उसका फ़ोटो लेंगे. मैं सीख के आऊँगा फिर मैं इसका फ़ोटो लूँगा, अरे तब तक तो ये बच्चा बड़ा हो जाएगा. ये भिखारी है जो शायद लॉटरी जीत के कुछ हो जाएगा, है ना. ये शायद पेड़ है, ये सूख जाएगा, है ना. मौसम ही बदल जाएगा पूरा. सो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि फ़ोटो जर्नलिज़म जो है, फ़ोटो जर्नलिज़म फील्ड जो है, तो अभी जो बहुत सारे एस्पायरिंग हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या. क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी हमारे इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़ आती हैं, न्यूज़पेपर में बिल्कुल अलग फ़ोटोज़ आती है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए. फाइन.
पहला तरीका तो वही है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोई वर्कशॉप्स कर रहे हैं कहीं पर, है ना, आप कोई ट्रेंड तरीके से उस फील्ड को ले रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल बिट, थोड़ा सा बैकवर्ड्स जाना होगा जहाँ से लोग शुरू करते हैं। लोग अक्सर कैमरे से शुरू करते हैं, मुझे कहीं छपना है उससे शुरू करेंगे, मुझे कोई असाइनमेंट मिल जाए, मुझे कोई एनजीओ के साथ ब्रेक थ्रू मिल जाए, है ना, कोई फेलोशिप मिल जाए। नहीं, पहला चीज़ है, आई ऑफन से दैट फोटोग्राफी आपके कंधे पे कैमरा लटक रहा है, वहाँ से शुरू होता है। वो यहाँ से डाउनलोड किया, भेजा, छप गया, वहाँ से नहीं शुरू होता। कैमरा कंधे पर है और आप देख रहे हो। अब आपके देखने में आपको रुचि है लोगों के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ से लाइट कैसे आ रही है, या आपको अगर बाज़ार में खड़े खड़े लगता है कि मेरा एक फ़ोटो ले लेता हूँ, नहीं, है ना, आपका कैमरे के पीछे होने का मन होना चाहिए और फिर होना चाहिए कि मैं इस खिड़की में से सब चीज़ देखता हूँ। तो वो एक बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, एक बहुत स्वाभाविक सी रुचि संसार में होनी चाहिए, जैसी बच्चों में होती है ना। अक्सर आप देखेंगे बस जा रही है, मिनी बस जा रही है, कार जा रही है, तो बड़े लोग हैं वो अंदर बात कर रहे हैं, बच्चा खिड़की पे यूं बैठा है। ट्रेन में भी ये चीज़ होती है ना, कुछ उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। और देन इट ट्रांसलेट्स इनटू सम इश्यूज़, है ना। आप देखते रहोगे, लोगों में रुचि रहेगी तो उनकी बात कहने की आपके अंदर इच्छा जगेगी, है ना। पर आप देख ही नहीं रहे तो आप में इच्छा नहीं जगेगी, इच्छा नहीं जगेगी तो आपका कैमरा उनकी तरफ नहीं उठेगा, है ना। तो वहाँ से शुरुआत करना बेहतर है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें देखना शुरू करना होगा, हमें व्यू फाइंडर से देखना करना होगा, कैमरे के पीछे रहना शुरू करना होगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने रामनाथ गोयनका वाली फ़ोटोज़ के बारे में कुछ स्टोरीज़ बताइए, जो अवार्ड्स आपने जीते हैं फ़ोटोज़ को लेकर। तो उनके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि कहाँ कहाँ आपने फ़ोटोज़ लिए, क्या क्या स्टोरीज़ है उसके पीछे, क्या क्या चीज़ें रिवील हुई उन फ़ोटोज़ की वजह से, इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल सोनाली, जब भी फ़ोटो और अवार्ड का एक ज़िक्र आता है या उसका रिलेशन की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि वो सब तरफ ही ऐसा, आजकल तो ऐसा होने भी लग गया है कि अवार्ड के लिए ही फिल्में बनती हैं। सबको पता है कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए बनाई जा रही है, चले ना चले। पर फ़ोटो जर्नलिज़म में ऐसा कम से कम मुझसे नहीं हुआ कभी भी। आप इतना इंटेंसली, इतना प्रोफाउंडली, इतना गंभीरता से आप लोगों में होते हैं, उनकी बात कहनी होती है, और आपके एस्थेटिक सेंस भी उसके साथ थोड़ा सा सूक्ष्म होता जाता है। उसका नतीजा होता है कि उस चीज़ को शायद अवार्ड मिल जाए। तो एक जो तस्वीर है जो पहली बार मिला था, वो था हमारे एक रिपोर्टर को एक खबर आई कि जो जयपुर में हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर एक शव रखा हुआ है जो कि जिसका कोई है नहीं और अनाथ है, लावारिश है। तो उसको वो क्रीमेट नहीं कर रहे, उसको वो डर रहे हैं उसको छूने से, जो निगम के जो कर्मचारी हैं। तो हमारा रिपोर्टर और उसने मुझे कहा, हम दोनों गए दोपहर में वहाँ पर कि ये ऐसा क्यों है। तो वहाँ जाके पता चला कि रिपोर्टर के पास ये खबर भी थी कि उसके जो डॉक्टर का स्लिप था उस पर लिखा हुआ था सस्पेक्टेड HIV पॉजिटिव, या ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो उनको लग गया कि वो बात फैल गई, इसको एड्स है, छुएंगे तो हमको भी एड्स हो जाएगा। अब हम वहाँ गए तो ऐसा कई बार होता है कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को ये एक सेंस करना होता है कि मुझे यहाँ कैमरा निकालना है, यहाँ थोड़ा लेट निकालना है, या यहाँ जाते ही निकाल देना है ना। वो सारा कुछ आपको अगेन यू हैव टू सेंस। वहाँ मुझे लगा कि बिकॉज वी हैव टू गेट द वर्क डन, यहाँ पर सेफ भी है, हम एक सरकारी प्रेमाइस के अंदर हैं, और थोड़ा तो यहाँ कैमरा निकालने से बात तेज़ होगी, दबाव पड़ेगा। तो हमने कैमरा निकाला और जो रिपोर्टर था उसने बातचीत करना शुरू किया। और थोड़ी देर में हलचल मच गई कि प्रेस के लोग आ गए हैं, और वो तो उन्होंने तुरंत उस बॉडी को मोर्चरी से निकाला और लाके रखा, और उसके ऊपर
एंड दे स्टार्टेड गिविंग वेरी फ्लिम्जी एक्सक्यूजेज लाइक हमारे पास DDT पाउडर नहीं था और हमारे पास ग्लव्स नहीं थे. नाउ अगेन दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट. उनके पास ग्लव्स क्यों नहीं थे? सही बात. अगर वो कह रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि वो विलेन थे, उनके भी अपने हाँ रीज़न थे. जैसे सत्यजीत रे कहते थे अपने करेक्टर्स के बारे में कि कोई करेक्टर कैसा भी बिहेव कर रहा है बट ही हैज़ अ रीज़न. और उनको उनके एक फ्रेंच फिल्म मेकर थे, उन्होंने ये बात कही थी किसी करेक्टर के बारे में. तो मुझे ये लगा कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, इन्होंने जो किया वो गलत है बट तो उन्होंने वो लाके बॉडी उसमें रखना शुरू किया और कहा चलो चलो अभी चलते हैं, सारा पेपर वर्क वगैरह करके. मीनवाइल अनदर बॉडी हैड कम, सो उसका भी हो चुका था, उसको भी क्रीमेट करना था. तो दोनों बॉडी को उन्होंने उसकी बेंच पे रखा एम्बुलेंस की और कहा कि चलो चलो हो गया. एंड वाइल आई वाज टेकिंग द पिक्चर्स उनमें से कुछ जने आके मुझे मना करने लगे, अरे आपको पता नहीं है वैसा भी ये आखिरी समय में फ़ोटो नहीं लेते और डेड बॉडी का फ़ोटो नहीं लेते, अपमान होता है ना. एज इफ़ दे वर फेलिसिटेटिंग द डेड बॉडी फॉर 3 days बाय कीपिंग इट इनसाइड. तो मैंने कहा नहीं, आप तो फ़ोटो लेना होगा, न्यूज़ होगा, आपने क्यों ऐसे इतना दिन तक. तो वो सब चलता रहा एंड दे क्लोज द डोर्स ऑफ एम्बुलेंस एंड दे लेफ्ट. बिफोर दैट आई हैड अगेन सम इंक्लिंग दैट ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए. तो दैट्स समथिंग विच फोटो जर्नलिस्ट शुड हैव. उसको ऐसा मालूम होना चाहिए कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, है ना, अभी कुछ और इसमें होगा, बाकी है. तो आप उनका व्यवहार देखिए, वो सिचुएशन देखिए. तो रिपोर्टर को कुछ कोट लेने थे सुपरिटेंडेंट के, सो ही वेंट इनसाइड द हॉस्पिटल. मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप कौन से शमशान जाओगे, तो उसने बताया कि ये मानसरोवर वाला जो शिप्रापत पे. तो मैंने कहा ठीक है. तो उनसे नहीं पूछा जो क्रीमेट करने वाले थे, बिकॉज दे वुड हैव अगेन रेसिस्टेड. तो मुझे अगेन आई डिड वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग. गुड थिंग वॉज आस्किंग ड्राइवर वेयर दे विल बी गोइंग. द बैड थिंग वॉज आई डिडंट अकम्पनी दैम. मैं उनसे पहले वहाँ पहुँच गया सीधा. हाँ, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था. तो मैं वहाँ शमशान पहुँचा और वो आए नहीं. आधा घंटा पौन घंटा. मुझे लगा यार दे हैव गिवन मी द रॉन्ग एड्रेस, दे हैव टेकन द बॉडी टू सम अनदर एंड क्या किया जाए. तो अगेन द गुड थिंग आई टेकन ड्राइवर्स नंबर, बिकॉज ड्राइवर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द होल स्टोरी, है ना. उसका काम केवल ड्राइव करना था, तो ही वॉज गिविंग मी ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने कहा यार कहाँ हो आप लोग, पहुँचे नहीं, मैं तो आ गया इधर. एंड ही टोल्ड मी दैट हम लोग खाना खा रहे हैं, चाय पानी करने बैठ गए लाश के साथ. हाँ हाँ. ओके. और मुझे लगा कि मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए था, है ना, कि आपके उसके अंदर 2 लाशें पड़ी हैं और आप रास्ते में 12-1 बजे आप घर से कुछ खाकर ही आए होंगे ना, और सही बात. आप डेड बॉडीज़ हैं, आप उनको रेस्टोरेंट पे रोक दी, लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर लाशें पड़ी है और आप बाहर. तो मैं खड़ा रहा वहाँ काफ़ी देर और थोड़ी देर बाद वो पहुँचे. नाउ हियर द स्टोरी अनफोल्ड्स. एक्चुअली जो अवार्ड मिला जिस फ़ोटो को, वो घटना वहाँ पर हुई. उसमें क्या है कि जो एक्चुअल क्रीमेशन वाला जगह है वो काफ़ी नीचे है जाकर, और लकड़ियाँ हैं वो ऊपर रहती है. तो यूजुअली लोग आते हैं, बॉडी को नीचे रख के आते हैं, फिर ऊपर आके लकड़ियाँ ले जाते हैं. तो उनके पास समय नहीं था या शऊर नहीं था, क्या कहें, है ना. ऐसा ही है. उन्होंने सोचा कि 2 चक्कर कौन काटेगा, तो उन्होंने डेड बॉडीज़ को उसके एम्बुलेंस की ज़मीन पे रख दिया, फ्लोर पे, लोहे के पतरे पे, और वो लकड़ियाँ उनके ऊपर सारी. और मुझे लगा ये क्या हो रहा है ना. इतना बड़ा होने के बाद, इस उम्र में आने के बाद, इतना कुछ देख लेने के बाद, और इतने सारे क्रीमेशंस में, मुझे लगा ये तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई यूँ करेगा कि शव को नीचे रख दिया और उसके ऊपर वो कोई सामान है, क्या है ना. हम चीज़ें भी नीचे नहीं रखेंगे. अगर किसी आदमी का मान लो कुछ पैंट शर्ट भी होते, है ना, तो भी हम उसको ज़मीन पर रख के ऊपर लकड़ियाँ नहीं रखते, है ना. हम उस पैंट शर्ट को कहीं और रख देते. पर वो तो साक्षात 2 व्यक्ति थे, है ना. तो मैंने जैसे कैमरा उठाया इस चीज़ को कवर करने के लिए, और एक आदमी आके, नाउ दे वर गेटिंग लाइक एग्रेसिव, है ना, कि अब वही टोन चेंज हो गई, आप यहाँ ये सब नहीं करोगे और आपको पता नहीं अपमान हो रहा है. उन्हें लगा आप चले गए वहाँ से. हाँ, उनको हम शुरू से खटक रहे थे उनको कि ये क्यों आ गए.
और उनको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे कि अब ये खबर छपेगी, क्या होगा। तो अब वो हाथापाई और बहसबाजी इस पर आ गए। तो द पिक्चर विच आई टुक वॉज, उन्होंने मुझे ऐसे नहीं करने दिया, कैमरा उठाने नहीं दिया, और पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं और वो वहाँ से मेरी तरफ आ रहे हैं। उसी बीच में द कैमरा वॉज डैंगलिंग, वो फिल्म कैमरा था। तो यहाँ थोड़ा स्किल काम आता है ना। आप कंपोज्ड हो, अब वो सारा कुछ हो रहा है, आपको वो भी दिख रहा है, उनसे बहस भी चल रही है। तो आई एम काइंड ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम, उनका भी आई कांटेक्ट मुझसे है, और उस बीच में मैंने कैमरा ऐसे एंगल करके एक I took a picture without looking through that picture of the feet of two men, चार, दो जोड़ी पाँव, ऊपर लकड़ियाँ, उन पे DDT छिड़का हुआ। वो अच्छा असाइनमेंट नहीं है ना, पर वो बात आपको कहनी है कि ऐसा होता है। तो उस पिक्चर को एक रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। आपको जैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं, ये जैसे आपने स्टोरी बताई, तो क्या ये चीज़ें अफेक्ट करती है आपको एज अ पर्सन? मतलब पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें जो आप देखते हो, कैमरा में कैप्चर करते हो, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, या मतलब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, वो हमारा काम है बट वो हमें फिर भी पर्सनल लेवल पे इफ़ेक्ट कर जाती है, तो इस चीज़ से आप कैसे डील करते हो, या आपको इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती है? हाँ, आपका इंटेंशन मायने रखता है, आप किस मन से वो चीज़ कवर कर रहे हो, है ना। अभी हम अगर नहीं जाते, जस्ट ट्राई टू गो बैकवर्ड्स कि ये सब नहीं हुआ, तो क्या होता उस लाश के साथ, उस डेड बॉडी के साथ, उस व्यक्ति के साथ। वो शायद वहाँ पता नहीं कितने समय तक पड़ी रहती, वो सड़ जाती, या पता नहीं कब जाके कुछ होता, या शायद उससे भी बुरा कुछ उसके साथ होता, शायद वहीं से उसको वो कुछ कर देते, है ना। तो उसको एक सम्माननीय आखिरी समय तो मिला कि दो जने थे जो उसके लिए लड़े, है ना, जिसके लिए कोई भी नहीं था, वो सड़क पे मर गया था, है ना, और मरे हुए के साथ भी ये हो रहा था, पर दो जने थे जो जाके उसके लिए आवाज़ उठाई कि नहीं, इसको सही तरीके से। तो ये चीज़ें आपके मन में आती है कि मैं अगर ये नहीं करता, या वो जो मेरा फ्रेंड था रिपोर्टर, वो उसके मन में नहीं आती कि ये खबर है। तो और इस घटना के होने के बाद, छपने के बाद चीज़ें बदलती हैं। फिर शायद सुपरिंटेंडेंट ध्यान रखेगा, वो शायद कोई आदेश पारित करेगा कि आइंदा से HIV पीड़ित हो, तो वो शायद उनको सुविधाएं देगा। सही बात। वो शायद एक अवेयरनेस वर्कशॉप करेगा बाद में, जिसमें उन एम्प्लॉयज़ को समझाया जाए कि HIV पीड़ित अगर कोई सस्पेक्टेड डेड बॉडी है तो उसे हैंडल कैसे करना, इसके प्रोटोकॉल क्या हैं। तो ये चीज़ें मायने रखती है। और आपने चूँकि एक अच्छी चीज़ करी है, आपके मन में ज़रूर रहती है वो चीज़ें, पर आपने कुछ अच्छा किया, है ना, उस आदमी से आप जुड़ जाते हो जिसके लिए आपने ये चीज़ की। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें की, यहाँ पे बहुत चैलेंजेस भी आए। आपने वो फ़ोटो व्यू फाइंडर में नहीं क्लिक किया, आपने बिल्कुल सडन छुपा के वो फ़ोटो लिया। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जहाँ बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हुआ है, जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ कैमरामैन को फ़ोटो या वीडियोज़ लेने ही नहीं देते, वो रोक देते हैं बिल्कुल। तो ऐसा कोई चैलेंज या ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं? हाँ सोनाली, ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये शायद हर फोटो जर्नलिस्ट के साथ ये चीज़ें होती हैं, उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं बिल्कुल, तो। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे पास आती रहती है कि कैमरा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी कोई स्टोरी आपके साथ हुई है, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से हो तो? हाँ बिल्कुल, चूँकि हमें सब ये कॉलेजों में नहीं सीख पाए, तो फिर सचमुच में ही कैमरा और सर तुड़वा के ये सब सीखना पड़ा। और अब मैं इस पे मजाक में हंस के कह सकता हूँ, पर जिस समय ये घट रहा था उस समय वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसा चल रहा था। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस की बात है, और काफ़ी समय हो गया अब तो उसको, पर बात अभी भी वैसी है, ताज़ा है। तो इलेक्शन हो चुके थे और रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था, और हमने दिन भर इलेक्शन कवर किया। लड़कों का हंगामा था, वोटिंग, वो बड़ा फेस्टिव भी होता है कभी कभी, कहीं डंडे भी पड़ रहे होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट्स थे उसमें। तो वो सारा करके मैं ऑफिस चला गया था। तो अगेन हमारे जो रिपोर्टर था, और मेरे पास भी एक कॉल आया
कि वहाँ पर कुछ डिले हो गया है रिजल्ट डिक्लेयर करने Okay. में, एंड लड़के लड़कियाँ रेस्टलेस हो रहे हैं। तो कुछ वायलेंस भी हो सकता है, कुछ भी, और ज़्यादा हो रहा है। करीबन 7 साढ़े 7 की बात है। रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था काफ़ी पहले। तो मैं अपना मोटरसाइकिल लेके और तेज़ी से दौड़ा, ऑफिस की सीढ़ियाँ कूदते कूदते उतरा, और तो मुझे नहीं पता था मैं किस में जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा इससे पहले इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं जैसे ही जनता कॉलोनी का जनता कितना मार्केट, टाइम हुआ था आपको इस फील्ड में आए हुए? करीबन 2.5 साल। ओके, 2.5 साल। तो इस तरह का असाइनमेंट पहले नहीं हुआ था। कुछ थोड़ी वायलेंस हुई थी, पर ये पहला मौका था। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने वाली जो सड़क है, मैं उसमें अलग टॉक रोड से एंट्री किया मैंने, और मैंने देखा कि यूजुअली वहाँ जो चहल पहल रहती है, तो शटर गिर रहे थे और लोग फटाफट गाड़ियाँ ले लेके और दुकानें बंद करके भाग रहे थे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि लोग यूँ भाग रहे होते हैं और फोटो जर्नलिस्ट यूँ जा रहा होता है। बारिश में लोग घरों में भाग रहे होते हैं। लगता आपको ऐसी सिचुएशन में? हाँ, ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि डर नहीं लगता। हाँ, आपके दिमाग में वो तस्वीर घूम रही होती है कि मुझे तस्वीर क्या मिलने वाली है, डर नहीं होता मन में। तो मैं वो जा रहा हूँ और सारे लोग यूँ भाग रहे हैं, तो वो सेंस शुरू हो गया कि कुछ हो तो रहा है। तो मैं और थोड़ा तेज़ हुआ। थोड़ी देर बाद देखा कि सड़क पे कांच हैं, कुछ पत्थर हैं। मुझे लगा यार कुछ हो गया, हो तो नहीं गया, मैं चूक तो नहीं गया कुछ, है ना? हाँ। पर मैं चूका नहीं था। और आगे गया तो मैंने बाइक वहीं खड़ी कर दी और फिर आगे गया। तो मुझे पहला लेसन मिला कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को हमेशा अच्छे जूते पहनने चाहिए। क्योंकि आगे वो पूरा कांच से भरा हुआ था जो सड़क था। तो लकीली मेरे ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रांतिकारी हूँ और चप्पल पहन के, है ना, झोला लटका के, है ना, वो सारा नहीं। आप तैयार होकर जाओ, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। तो आगे गया तो मैंने देखा लड़के भागते हुए आ रहे थे, उनके हाथ में लकड़ियाँ थी, पत्थर थे, और पीछे से पुलिस आ रही थी भागते हुए, और उनके बीच में पथराव चल रहा है, कांच की बोतलें फेंकी जा रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं पुलिस की तरफ चला जाता हूँ, है ना। लड़कों की तरफ अनसर्टेनिटी रहेगी, ऑल्दो काफ़ी जान पहचान भी थी, पता थे, या रोज़ाना मिलते भी थे, पर उसमें कई सारे लोग होते हैं उस भीड़ के अंदर। तो मुझे लगा मैं इनको पार करके मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए और मैं और चला गया जहाँ बिल्कुल बैटलफील्ड बना हुआ था। लड़कों के और पुलिस के बीच में सड़क दिख ही नहीं रही थी, इतने पत्थर, कांच की बोतलें और अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी भारी भारी और लकड़ियाँ। तो मैं सडनली आई वाज कॉट लाइक इन अ क्रॉस फायर। इधर से चल रहा और मैं बीच में आ गया। तो मुझे लगा, और वहाँ एक हल्का सा कोई यूरिनल था, तो आई हिड इनटू दैट। उस यूरिनल के अंदर, पब्लिक यूरिनल, छोटा सा, इमेजिन बाजार का, इट वाज, उसके अंदर मरना है या बाहर मरना है, इट वाज लाइक दैट, कि मुझे बदबू से मरना है या मुझे पत्थर और बोतल खा के मरना है। मेरा चॉइस था कि बदबू से मरना बेहतर है। तो मैं उसके अंदर जाके और दरवाज़ा खोल के ऐसे उसमें से कुछ कुछ फ़ोटो लेता रहा। थोड़ी देर बाद देखा कि वो सारे लड़के, उनका जो ऑफिस था, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का पार्टी ऑफिस, उसके अंदर भाग गए और पुलिस उनके साथ साथ पीछे गई। मुझे लगा हाँ ये ठीक है, अभी कुछ ले सकते, हाँ अभी मैं पुलिस के साथ हूँ, अभी थोड़ा सेफ है। तो मैंने भी पुलिस को ज्वाइन कर लिया और मैं उनके साथ साथ उस बिल्डिंग में घुस गया। अभी दूसरा लेसन, है ना, ये मेरे सेमेस्टर्स चल रहे हैं, है ना, ये मेरे क्लासेस चल रही हैं, बिना किसी टीचर के, हाँ, बिना किसी प्रोफेसर के। उसकी छत के ऊपर से मैंने पहली चीज़ जो आती हुई देखी वो कूलर का ढक्कन था, है ना। ऊपर से लड़के चीज़ें फेंक रहे थे एंड दैट कूलर का ढक्कन लोहे का उड़ता हुआ आया। थोड़ी देर बाद एक हेलमेट, इधर से एक मुड़ा, बांस का बना हुआ मुड़ा पूरा ऊपर से किसी ने फेंका। थोड़ी देर बाद अंदर खाना भी बनाते थे, वो वहीं रहते थे, प्रेशर कुकर का एक ढक्कन वो उड़ता हुआ आया। और पुलिस वालों के पास अपना शील्ड था, हेलमेट थे, आई हैड नथिंग। सेकंड लेसन कि ऐसी जगह पे ऑलवेज कीप योर हेलमेट विद यू, है ना। और हेलमेट जितना कवर्ड होगा, मैं हेलमेट सेफली वहाँ पे बंद करके आया था। तो ऐसे सीखना दो चीज़ें सिखाई है सर ने हमें अभी। हाँ, आपका पाँव सेफ रखो और आपका सर सेफ रखो। अभी मैं जैसे ही उनके साथ कमरे में घुसा, मैंने अगेन वो देखा जो मैंने आज तक न तो अखबार में देखा था, न सोचा था कि ऐसा होता है। अगर वायलेंस जो होती है
वहाँ लड़के जैसे गद्दे और तकिए पड़े होते हैं और उनको पिंजारे जिनको कहते हैं, रुई धुनने वाले जैसे धुनते हैं, वैसे उनको पुलिस वाले पीट रहे थे उस कमरे के अंदर, और हर कमरे में यही चल रहा था। एंड दे वर क्राइंग, वो कोई चप्पल ऐसे किए हुए, कोई यूं हाथ किए हुए, हड्डियां टूट रही थी, खून आ रहा था। एंड मुझे लगा कि, और इट वाज लाइक fierce, very accelerated. It was like passing, fleeting. जैसे स्पार्क्स होते हैं ना, फ्लाई करते हैं, वैसी चीज़ें घट रही थी। आप उसमें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, आप उसको क्या, मुझे क्या रोकना है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। तो बाय रिफ्लेक्स माई वन ऑफ द हैंड अगेन द पिक्चर विच आई टुक वॉज नॉट थ्रू द व्यू फाइंडर, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, इतने लोग थे आगे। तो मैंने एक हाथ ऐसे करके कुछ फ़ोटो लिया। एंड second thing was someone turned towards me and shouted some obscenities और कुछ वो जो कॉप्स थे जो, और मुझे बाहर भगाया, और बाहर से किसी ने मुझे अगेन आवाज़ दी। एंड इट वाज हैपनिंग विद इन, आई बिलीव इन 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में सारा कुछ हुआ। पूरा chaos था। हाँ, chaos एकदम। तो मैं बाहर भागा लॉन में, एंड सडनली 3 of them started hitting me with batons ruthlessly without वरिंग कि कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है। मैं कह रहा, मैं प्रेस से हूँ, माई कार्ड, मेरा कैमरा, मैं प्रेस से हूँ। दे आर नॉट लिसनिंग। वो लाठी लेके और बिल्कुल जैसे उन लड़कों को मार रहे थे। तो मेरा रिफ्लेक्स से मैंने कैमरे से सर बचाने की कोशिश की, तो कैमरा और ऐसे किया, तो आई कुड हियर ओनली द फर्स्ट थिंग कि मेरे फ्लैश के ऊपर वो लगा, और फ्लैश नीचे गिर के उससे डिटैच हो गया और वो नीचे गिर गया। और दूसरा मेरे हाथ पे लगा, तो कैमरा मुझसे छूट गया। नाउ आई वॉज डिफेंसलेस। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे मारा, और देन दे रैन अवे टू वापस अंदर। अभी मैंने जैसे ही क्या हुआ, शायद ये सारा 1 या सवा मिनट में हो गया। तो मैंने देखा, यहाँ हाथ लगा कि इट वॉज ब्लड। एंड थोड़ी देर में मुझे दिखना बंद हो गया, क्योंकि मेरी आँख में खून आ रहा था ऊपर से। तो मुझे लगा यार सर पे चोट लगी है। द फर्स्ट थॉट दैट केम इन टू माई माइंड वॉज नॉट कॉलिंग समवन। मुझे लगा यार ये तो इलीगल है, सर पे कैसे मार दिया है ना, अगर मारते हैं तो इट्स बिलो द वेस्ट। तो मैं बाहर निकला, मैंने स्टम्बल करते हुए एंड ट्राइंग टू फाइंड माय वे। तो बाहर 2 जने और आए मुझे पीटने के लिए, बिकॉज वो पूरा बैटल फील्ड हो चुका था, है ना, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया था। अब कैमरा भी नहीं था जिससे मैं कह पाऊँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। और कैमरा हाँ, तो मैंने बैग खोल के उनको कुछ दिखाने की, फिल्म रोल दिखाने की कोशिश की कि मैं प्रेस से हूँ, ये मेरा कार्ड है। And they came towards me, then they saw me bleeding, and I said कि अब क्या मेरे को मारना है क्या, है ना, ऐसे कुछ मैं चिल्लाया। तो वो मुझे ऐसे निकल के चले गए, and I could see that it was all dripping. तो then I took out my phone and called my editor, wonderful person. So he said, Himanshu, wait, I'll just make some arrangements. And within say 3 or 4 minutes, a police gypsy came rushing towards me. तब तक वो बात फैल गया था कि एक फोटो जर्नलिस्ट इंजर्ड हुआ है। तो दे टुक मी तो हॉस्पिटल। वहाँ मेरे दिस इंजरी, आई गॉट 8 or 9 स्टिचेस हियर एंड अ डिसलोकेटेड शोल्डर, पूरा कंधा खिसक गया था। और 2-3 दिन बाद पता चला कि मेरी पीठ पर करीबन 30-40 लकड़ी के निशान थे, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है वैसा बन जाता है। तो हमारा एडिटर भी वहाँ पर आए, अगला लेसन हॉस्पिटल में मुझसे मिलने। इस बहुत सुंदर इंसान है वो। तो सारा कुछ हो गया, मैं ठीक था, आउट ऑफ डेंजर, स्टिचेस लग गए। ब्रदर हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम फाइन सर। कुछ सीखा? मैंने कहा यस। बाय द वे वो कैमरा कहाँ है? टिपिकल एडिटर, फोटो लिया कि नहीं, ये सब के वो तो ठीक है। तो मैंने कहा हाँ फोटो लिया है। कि कैमरा? मैंने कहा वो वहीं गिर गया। ओके आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ही सेंट माय कलीग टू द पुलिस स्टेशन, दे गेव बैक द कैमरा। तब तक होम मिनिस्टर और सबके फ़ोन्स जा चुके थे, उन्होंने कैमरा रोल सारा कुछ दे दिया। फ्लैश मिला नहीं, वो शायद चकनाचूर हो गया था पूरा। तो वो रोल मेरे कलीग ने डेवलप किया। दैट वाज अगेन, इफ़ यू हैव गुड कलीग्स, है ना, अगर जैसे कोई पॉलिटिक्स है ऑफिस के अंदर, तो हो सकता है वो कलीग कैसा, रोल तो था ही नहीं उसमें, सही बात है ना,
ये इतना कॉमन है, हो सकता है ये, पर मेरा कलीग भी बहुत सुंदर था, है ना, सुमन सरकार। तो वो गया वहाँ से रोल लेकर आया, उसने रोल डेवलप किया। उसने सबसे सुंदर फोटो जो था, सबसे सुंदर नहीं कहेंगे, मतलब मैं सुंदर इस सेंस में कह रहा हूँ कि सबसे न्यूज़ी जो पिक्चर था, वो फ़ोटो चुन के एडिटर को दिखाया। वो अगले दिन फ्रंट पेज पे पब्लिश हुआ। फिर जो पुलिस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको उनका एपीओ हुए, इंक्वायरीज चली काफ़ी महीनों तक। तो वो एक इंसिडेंट था जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये न्यूज़ आई आपकी, वो जो आप इंजर्ड हुए थे तो आपकी न्यूज़ आई क्या न्यूज़पेपर्स वगैरह में? हाँ, वो सारे न्यूज़पेपर में मेरा फ़ोटो था। मेरे कलीग्स मेरा फ़ोटो खींचने हॉस्पिटल आ रहे थे। तो आई वाज लाइंग देयर एंड वो पहला एक्सपीरियंस था कि कैमरे के सामने होना, एक खबर बनना कैसा। खबर लेने गए थे और खुद खबर बन गए। बिल्कुल। हाँ। सर, आपने एक स्टोरी सुनाई थी हमें वर्कशॉप पे, जिसमें आपने एक लाइन यूज़ की थी कि हिमांशु जी, आपके कुत्ते ने हमारा शेर खा लिया। आप उस स्टोरी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ, ये भी एक हाँ, ये पंक्ति ज़रूर बहुत रोचक है, पर इसके बीच में जो हुआ वो अच्छा हुआ कि हमने उसको कवर किया। तो एक्चुअली हम रणथंभौर गए थे और कुछ शेरों पर एक न्यूज़ रिपोर्ट थी। तो हमारे साथ रिपोर्टर भी थे, उन्होंने वो स्टोरी कर रहे थे उस पर, और हमने फ़ोटोज़ भी किया और वो स्टोरी करके हम वापस लौट रहे थे। उस बीच में ऐसा हुआ कि एक ऐसी खबर आई कि वहाँ पर एक स्कूल है जो रिनोवेट हुआ है और गांव वालों ने काफ़ी पैसा डोनेट किया है और वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि यार ये स्टोरी भी कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ चलते हैं, अच्छा स्टोरी है, पॉजिटिव स्टोरी है। और उससे उन्होंने कुछ हॉल वगैरह वहाँ बनाए थे। तो वहाँ प्रिंसिपल ने हमारी बहुत आवभगत की और वो सब बैठे, जो डोनेशन वाले लोग थे उनको भी बुलाया कि देखिए अखबार में खबर आ रही है, वो सब। कुछ टीचर्स भी आ गए और गांव की जो श्रेष्ठ मिठाइयाँ थी, भुजिया थे, वो सब आ गए। टेबल क्लॉथ भी था टेबल के ऊपर, अच्छा धुला हुआ। तो वो सब बहुत सलीके से हमको परोसा जा रहा था। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने जो देखा वो इसके कॉन्ट्रास्ट में था। हाँ। हमारी जो आवभगत हो रही थी कमरे में, तो वो जब रिपोर्टर था, नेचुरली वो सारी डिटेल्स ले रहा था कि कितने पैसा आया, क्या क्या किया आपने, कब हुआ, पहले स्थिति क्या थी, वो सब लिख रहा था। मुझे लगा मेरा इसमें काम नहीं है, मैं स्कूल का एक चक्कर लगाता हूँ, है ना, बच्चे हैं, बच्चा खाना खा रहे होंगे तो उनको देखता हूँ। तो उसी समय घंटी बजी और सारे बच्चे दौड़े। तो मैंने देखा अच्छा ये मिड डे मील का टाइम है। तो मैं वो जहाँ मिड डे मील होना था उधर चला गया। तो बहुत करीने से बच्चे बैठे हैं और वो कमरा इतना सुंदर, एक बारादरी जैसी थी जिसमें फ्रेस्कोस बने हुए और फ्रेशली पेंटेड। ऐसा लगता था कोई महाराजा यहाँ बैठ के अभी संतूर या सितार सुनेंगे, वैसी जगह। और वो बच्चे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल के, 6 साल के, 9 साल के, जहाँ वो खाना खाने वाले। हाँ, खाना खा रहे थे और बैठ गए लाइन में, और बहुत अच्छा खाना। और बड़े बच्चे उन छोटे बच्चों को परोस रहे हैं, है ना, बड़ा कॉमरेडरी, फ्रेंडली, अच्छी खुशबू आ रही थी, है ना, गरम गरम रोटियाँ, सब्ज़ी और उनकी साफ साफ थालियाँ। और मैंने देखा एक मैडम आके बैठ गई जो शायद इंचार्ज थी मिड डे मील की। तो मैंने कुछ तस्वीरें ली, मैंने कहा बात अच्छा है इस स्कूल में अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद एक छोटा सा पिल्ला था जो कहीं गली से आया और वहाँ आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो और आगे आ गया तो जूठन कुछ पड़ी थी वो उसने खा ली। थोड़ी देर बाद देखा तो एक उस पिल्ले की माँ भी आ गई। फिर देखा एक पीछे एक और कुत्ता था। तो मुझे लगा यार ये खाना खा रहे हैं और ये बिल्कुल नाली में से उठ के गंदे, है ना, बच्चों के पास आए, तो ठीक अभी देखते हैं। वो मैडम का काम है, शी इज़ द इंचार्ज, वो उनको हटा देगी। तो मैंने 1-2 को भगाया तो चले गए। तो मैं पास वाली लाइन में फ़ोटो लेने गया एक, तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो लड़का है ही नहीं। वो अपनी थाली लेके दूर बैठ गया क्योंकि 2 कुत्ते उसके पीछे आ रहे थे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर। हाँ, बिल्डिंग के अंदर मिड डे मील जहाँ हो रहा है, 2 कुत्ते जो विजिबली फुल ऑफ इन्फेक्शंस एंड, तो वो उसकी थाली की तरफ जा रहा है और वो अपनी थाली ऐसे बचा रहा है। वो छोटे बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी एकदम से मेरा अंदर बदल गया,
है ना। वो जो मैं एक डॉक्यूमेंट कर रहा था कि सुंदर चीज़ हो रही है स्कूल में, कितनी अच्छी तरह से एज एन एग्जाम्पल हो रहा है, इट सडनली फ्लिप्ड। अगेन फोटो जर्नलिज्म, आपको उस समय सेंस करना आना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ वो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज़। तो मैंने एक तस्वीर लिया उसका, और वो बच्चे ने उसको कुत्ते को भगाया। मैंने देखा 3-4 और कुत्ते इधर आ गए, और एक्चुअली अगर वहाँ 30 बच्चे थे तो करीबन 13 या 14 कुत्ते, बड़े फुल ग्रोन डॉग्स, फेरल डॉग्स, दे वर देयर। मैंने मैडम को आवाज़, मैडम ये देखिए, मैडम इज़ नो वेयर, शी हैड गॉन बैक टू आई डोंट नो वेयर, शी वाज सपोज टू लुक आफ्टर दिस, वो सारा। तो मैंने कुछ उनको भगाया, तो इधर वो तो एक मीली जैसा हो गया, है ना, भगदड़ जैसी मच गई। कितने कुत्ते थे वहाँ? करीबन 13-14 कुत्ते, और कुछ बड़े पिल्ले भी होंगे, और कुछ बच्चे तो कुत्तों से बड़ी इतनी हाइट के थे, इमेजिन। उनसे खाना बचाना, और वो बच्चे मोस्टली स्कूल इसीलिए आते हैं कि वहाँ, है ना, खाना मिल जाएगा। हमें नहीं पता वो बेचारे कहाँ से आ रहे हैं, आज सुबह उन्होंने घर पे कुछ खाया भी है कि नहीं, उनके माँ बाप ने भेजा है कि स्कूल में गरम रोटी खा लेंगे या, और वहाँ पर ये सब हो रहा था। तो मैंने एक हाथ से फ़ोटो लिया, दूसरे से भगा रहा हूँ, मैडम को भी आवाज़ दे रहा हूँ, और मुझे लगा ये क्या हो गया ना, अगेन विद इन 30-40 सेकेंड्स, और बच्चे अपनी रोटियाँ यूं लेके खड़े हैं, है ना, और वो कुत्ते उनको रोटियों पे उछल रहे हैं। रोटी ले ली तो थाली में से उनका आलू की सब्जी, और वो खा रहे हैं। अब मुझे लगा यार ये तो पैथेटिक, ये क्या देख रहा हूँ। और कुछ बच्चे जो बड़े हैं तो उनके थाली में से वो कुत्ते खा रहे हैं, और वो यूं डर के ऐसे हो रहे हैं। और कुछ देर में बच्चे उठ के भाग गए वहाँ से। कुछ देर का मतलब 2-3 मिनट नहीं, ये सारा कुछ 8-9-10 सेकंड में हो रहा है। इधर लिया, वो उधर कुत्ता, वो रोटी, एंड खत्म। वो मिड डे मील शुरू होते होते खत्म हो गया। वो कुत्तों का मिड डे मील चल रहा था। हाँ, कुत्तों का मिड डे मील हो गया, और वो ग्राउंड के अंदर भी कुत्ते उन बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। तो बच्चा बेचारा छुप के भी कहीं खा रहा है, उसको भूख लगी है, खाना खाना है, और वो ऐसे खा रहा है, तो उसकी थाली में भी 3 कुत्ते वापस। तो वो बड़ा, और देयर वाज नो टीचर, है ना, वो सारे अंदर जानकारी दे रहे थे कि हमने स्कूल को कैसे रिनोवेट किया। और तो उसके बाद में ये सब फ़ोटो खींच लिया। मैंने देखा वो बच्चे खुद ही थाली भी धोते हैं। अब वो कुत्ते की चाटी हुई थालियाँ, वो बच्चे कैसे धो पाएंगे, ना वहाँ साबुन था, है ना, वो मिट्टी लिया, थोड़ा ऐसे करके थाली धो के रख दिया अंदर। अब अगर बच्चे बीमार पड़ते उस गांव में, है ना, कल को अगले महीने इन्फेक्शन फैलता है, जांचें होंगी, हाँ नहीं बीमारियां कहाँ से आई, यहाँ से आई, क्योंकि वो एक मैडम वहाँ ड्यूटी नहीं कर रही थी, क्योंकि आपकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, कुत्ते अंदर आ जाते हैं, किसी को नहीं पता वो क्यों हो रही है ना। तो ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कल को वहाँ कोई एपिडेमिक फैलती है, बच्चे अगर 100 बीमार पड़ते हैं तो कारण वहाँ पर है। तो उसके बाद में हमने वो फ़ोटो भी किया जिसके लिए हम आए थे, पर वो स्टोरी कभी छपी नहीं, क्योंकि जब हम ऑफिस पहुँचे तो मैंने एडिटर को बताया कि मेरे पास ये फ़ोटोज़ हैं। और बाद में खैर वो नेशनल स्टोरी छपी, है ना। और चूँकि मैंने वो सब कुछ देखा, तो हमारे जो एडिटर थे राकेश गोस्वामी, उन्होंने कहा कि यू राइट द स्टोरी। तो मैंने वो फिर स्टोरी लिखा, और शेर वाला स्टोरी था वो बाद में आया, बिकॉज ऑब्वियसली हार्ड न्यूज़ वो पहले आएगा। तो फिर बाद में ये कभी कभी बहुत साल बाद जोकिंगली दैट माई फ्रेंड यूज्ड टू से मी कि यार आपके कुत्ते मेरा शेर खा गए। बट उसके बाद में एक्शन हुआ, है ना, उस स्कूल की बाउंड्री वॉल सही हुई, प्रिंसिपल को खिलाफ एक्शन हुआ, फिर शायद वो वापस लगे, वी फॉलोड इट अप, सारा चीज़ें, बट चीज़ें सुधरी उसके बाद में। सो आप हमें, हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, और हमारे जो अर्ली लाइफ स्टार्ट करने वाले ऑडियंस है इस फील्ड में, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर सोनाली, समय बहुत बदल चुका है ना, करीबन 25-28 साल का अंतराल है इसके अंदर। मेरी अर्ली लाइफ यूजुअली, मैंने कहा उस समय इतने ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने बीकानेर से अपनी पढ़ाई की थी, एक स्कूल से। बीकानेर छोटा कस्बा जैसा ही था उस समय, पर उसके बाद मैं जोधपुर आ गया। जोधपुर में कुछ समय पढ़ाई की 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन किया साइंस से, क्योंकि मुझे साइंस फील्ड में जाना था या डॉक्टरी में जाना था, पर चूंकि वो हो नहीं पाया, और पर मैं
इस दौरान खूब पढ़ रहा था, साहित्य खूब पढ़ रहा था, तस्वीरें ले रहा था, ओकेजनल फिल्म अच्छी आती तो वो देख रहा था, संगीत में रुचि थी, संगीत की कुछ वाद्य यंत्र सीख रहा था, कविताएं पढ़ रहा था, वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहा था, जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहा था। तो वो एक माहौल भी था और मेरी एक झुकाव भी था। तो उससे मेरे एक किन्हीं सलाह दी एक परिचित ने कि तुमको अब ग्रेजुएशन में तुम्हारे 47% है, 12वीं में तुम्हारे 54% है, 10वीं में 62% है, तुम्हारा कुछ है ना, कुछ होना जाना है नहीं, पर चूंकि तुम पढ़ रहे हो तो तुम एमए कर लो इंग्लिश में, है ना, काम ही आएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, एमए में खूब चीज़ें, मैं सिलेबस देखा, शेक्सपियर है, मिल्टन है, इलियट है, पढ़ लेते हैं, आर.के. नारायण है। तो मैंने 2 साल फिर एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, और उससे एक विधिवत मेरी साहित्य के अंदर पढ़ाई हुई, पर मैंने प्रोफेशन वो नहीं किया, है ना मैंने साइंस में गया। इंटरेस्ट था, मतलब हाँ, रुचि थी। अब इससे बात यह है कि अगर अभी जो फोटो जर्नलिज्म कर रहे हैं तो उनको कैमरे को छोड़ दो, आप साहित्य पढ़ो, आप संगीत पढ़ो, आप वाद्य यंत्र सीखो, आप कविताएं पढ़ो, है ना, आप अच्छे अच्छे नाटक देखो, आप आपके शहर में अगर कोई मुशायरा होता है वहाँ आप जाइए, आपके शहर में कोई अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक वाला सिखाने वाला है, उससे जाके बांसुरी सीखिए, उससे गिटार सीखिए, उससे आप हारमोनिका सीखिए, आप है ना कुछ गाने बनाइए, क्योंकि कैमरे तक हमें डिपेंडेंट हाँ, डोंट बी लिमिटेड टू द कैमरा। आपका देखना इम्प्रूव कीजिए, वो देखना कलाओं से इम्प्रूव होगा, वो ह्यूमैनिटीज से इम्प्रूव होगा। कैमरे की नॉलेज आपको आपका देखना इम्प्रूव नहीं करेगी, बिल्कुल आपकी दृष्टि में बदलाव नहीं आएगा कैमरे की जानकारी बढ़ने से। वो निकॉन के इंजीनियर का काम है, वो कैनन के इंजीनियर का काम है, वो लाइका का इंजीनियर देख लेगा, दे विल टेक केयर। आप व्यू फाइंडर से क्या देखना है वो तो सोचना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ कीजिए इम्प्रूव। तो आप दूसरे बहुत चीज़ों में ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ से स्किल सीखिए, जानकारी लीजिए, शब्दों की नॉलेज लीजिए, संस्थान कैसे होते हैं वो सब सीखिए, पर आपको करना क्या है, आपकी नज़र कैसे होगी, आपको विषय को पहचानना क्या है। आप फोटो जर्नलिस्ट है पर आप लिख भी सकते हैं, है ना, आप रिपोर्टर बनेंगे पर आप अच्छे फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, है ना, आप फोटो जर्नलिस्ट है पर आप साथ में संगीत भी कर सकते हैं। तो लिमिट मत कीजिए। हाँ, ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ बताया हमें कि हमें कैमरे के पीछे रहना है, लिमिट नहीं करना है खुद को, हमें पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना चाहूँगा, जैसे कुछ फिल्में, है ना, कुछ ऐसे चीज़ें, बुक्स और कुछ फिल्में जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस। हाँ, वो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे एक हरमन हेस का बुक है सिद्धार्थ, उसको पढ़िए, ताकि जीवन के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन दिशाओं में जीवन जा सकता है, क्या वो अद्भुत पुस्तक। हरमन हेस को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो उनकी बुक है सिद्धार्थ, वो पढ़िए। सत्यजीत रे की शुरुआती फिल्में देखिए, पाथेर पांचाली है, चारुलता है, ऋतिक घटक की कुछ फिल्में देखिए, और फेलिनी, इटालियन फिल्म मेकर है फेडरिक फेलिनी की फिल्में देखिए, बेसिकली अमरकॉर्ड देखिए, 8.5 देखिए, और हेनरी कार्टियर ब्रेसो हैं जो फोटो जर्नलिज्म के बड़े वटवृक्ष हैं, उनकी तस्वीरें देखिए, और वो एक बहुत ही अद्भुत राइटर भी हैं, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके इंटरव्यूज़ पढ़िए। हमारे यहाँ भारत में एस पॉल हुए हैं, उनकी तस्वीरें देखिए, उनका जीवन पढ़िए। टी.एन. सत्यन हुए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़िए। तो उससे हमको जो एक जानने को चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही काम की होगी। हिंदी साहित्य पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, कामायनी पढ़िए, है ना, प्रेमचंद को पढ़िए, उससे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना विस्तार मिलेगा। तो संगीत सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, बीथोवन को सुनिए, आप लियोनार्ड कोहेन को सुनिए, है ना, विजुअलाइजेशन इम्प्रूव होगा आपका, है ना, आपके लेखनी के अंदर संवेदनशीलता आएगी, गहराई आएगी। तो ये सारी कुछ अनंत है साहित्य, कलाएं। आपने इतने कम टाइम में हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच हिमांशु, यहाँ आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए हमें, इतने बिजी शेड्यूल से आपका शुक्रिया सोनाली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बातें करके। थैंक यू सो मच।
तो आज हमने बात किया हिमांशु व्यास जी से और उनकी जर्नी ने हमें बहुत इंस्पायर किया। तो आज मैं हिमांशु सर को थैंक यू कहना चाहूँगी और मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सारा प्यार दिया और आप और भी प्यार देते रहे हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि हम और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब and do like our videos. Thank you.